Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will see the second part of the first chapter. Okay, in the previous video we have discussed about some celestial bodies, what is geography, and we have seen two celestial bodies, the star and our planets. What is star and what is planet? Star is something that have their own heat and light and they emit it, and planets do not have their own heat and light. Okay, and today we will see the solar system, the sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites form the solar system. Okay, the sun, the 8 planets, satellites, asteroids, meteorites, everything, and the other some celestial bodies make our solar system. Okay, we often call it a solar family with the sun at its head. Okay, what we call as solar family, and the sun is the head of the family. Okay, yes, sun is the head because every other planets revolve around the sun. Okay, so sun is the center of our solar system. Okay, do you know Sol in Roman mythology is the sun god? In Roman mythology, Sol means sun god. Solar means related to sun. Okay, solar means something related to sun. The family of the sun is therefore called the solar system, or the family of the sun. इसी कारण sun के family को क्या कहते हैं? Solar system कहते हैं. Okay. Next, see, this is our solar system. We have sun and the 8 other planets. Okay, Pluto is not a planet. Mercury, Venus. Then in third number we have our Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, these are 8 planets. Then sun. Then other meteorites, asteroids, satellite. Everything consists our solar system. Okay. Next, we are going to study about one of the celestial body, the sun, and which is a star. Okay, we have discussed in the previous video that the sun is a star, and star have their own heat and light which they emit. So we are going to study about the sun. The sun is the center of the solar system. Okay, what is sun? Sun is the center of the solar system and is also the head of the solar family. Okay, it is huge and made up of extremely hot gases. Okay, ये बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही गर्म गैसेस से बना हुआ. You can imagine this by thinking that we can feel its heat and light when we are very far from sun. Okay, so if we go very near to it, it is so hot. Okay, it is extremely hot. Next, it provides the pulling force that binds the solar system. Okay, every planet revolves around the sun, so it has the pulling force that binds the solar system. Okay, ये बांधा हुआ है सभी planets को अपने चारों तरफ. Okay, the sun is the ultimate source of heat and light. Okay, sun क्या है? Ultimate source of heat and light, मतलब कभी ना खत्म होने वाला source. Okay, heat and light का source कभी नहीं खत्म होने वाला sun में. It is about 150 million kilometer away from the earth. Okay, कितना दूरी है ये? 150 million kilometer. बहुत दूर है, but comparing to other stars, it is near to us. Okay, like we have discussed in the previous video that like sun, many other stars are present in our solar system, but the sun is the nearest star to us. Okay, so sun is 150 million kilometer away from the earth. Next, speed of light. Light travels at the speed of 3 lakh kilometer per second. Okay, what is the speed of light? 3 lakh kilometer per second. यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख की किलोमीटर दूरी तय कर लेता है. Okay, even with this speed, the light of the sun takes 8 minutes to reach the earth. Okay, इतने ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी एक सूर्य की किरण को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है. ओके, अब इमेजिन कर सकते हैं कि हम कितने दूर हैं कि इतना ज्यादा स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से भी एक सूर्य की किरण को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाता है. ठीक है, सो एंड स्पीड ऑफ लाइट इज द ग्रेटेस्ट स्पीड. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लैनेट्स. There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और सन से कैसे किसकी कितनी दूरी है उसके अकॉर्डिंग वो सब हैं. मरकुरी सबसे पहले आता है, देन वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, और इनको याद करने के लिए एक एब्रिविएशन है. My very efficient mother just served us nuts.
ओके आपको अगर ये लाइन याद हो गया तो मतलब आपको प्लैनेट्स के नेम याद हो गए अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ओके जैसे एम में जो माई में जो एम है, एम फॉर मर्कुरी, वेरी का जो वी है, वी फॉर वीनस, एफिशिएंट का ई फॉर अर्थ, एंड मदर का एम फॉर मार्स, जे जस्ट का जे फॉर जुपिटर, सर्व का एस फॉर सैटर्न, अस का यू फॉर यूरेनस, एंड नट्स का एन फॉर नेपच्यून। ओके सो ये हैं 8 प्लैनेट्स के नेम। यू कैन सी हियर my very efficient mother just served us nuts. Okay so Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ठीक है तो यही हमारा सोलर सिस्टम है। ओके और ये जो है ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है इन अ फिक्स पाथ। ओके ऐसा नहीं है कि ये लोग कहीं भी किसी से टकरा जाएंगे। ठीक है जैसे जब हम लोग दौड़ते हैं हम लोग का रेसिंग ट्रैक बनता है कि आपको उसी ट्रैक में दौड़ना होता है। ओके सेम वे प्लैनेट्स का भी एक ट्रैक टाइप में होता है कि उन्हें उसी ट्रैक में रिवॉल्व करना है। ठीक है तो उसे हम क्या बोलते हैं ऑर्बिट्स। ओके all the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. Okay all the planets move around the sun in a fixed path. These paths are elongated, they are called orbits. और ये जो पाथ है क्या खींचा हुआ है। ठीक है elongated मतलब होता है खींचा हुआ, तो इनको हम क्या कहते हैं ऑर्बिट्स। और ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है ऐसा नहीं कि आसमान में एक लाइन ड्रॉ किया गया, ये इमेजिनरी है, हम लोग ने इमेजिन किया कि ऐसा लाइन जाता होगा। ये फिक्स पाथ है, जैसे ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है और ये फिक्स पाथ है जिसपे कि सारे प्लैनेट्स को रिवॉल्व करना होता है। ठीक है सभी का अपना अपना एक ऑर्बिट होता है, उनको उसी ऑर्बिट्स में सन का रिवॉल्वेशन करना होता है। ठीक है सन के चारों तरफ घूमना होता है। ठीक है इसे हम क्या कहते हैं ऑर्बिट। ओके ये क्या है हमारा ऑर्बिट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, द अर्थ ऑन विच वी लिव। ओके द ओनली प्लैनेट इन विच लाइफ इज पॉसिबल। The Earth is the third nearest planet to the Sun. Okay, the Earth जो है Sun से तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है in size is the 5th largest planet और size में ये 5th largest planet है। Okay, it is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as geode. ओके ये क्या है पोल्स, हम लोग को 2 पोल है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो पोल्स के पास ये हल्का सा चपटा बना हुआ है। ठीक है मतलब ये पूरी तरह सर्कल नहीं है, ये एक हल्का सा चपटा है पोल्स में, इसलिए इसका एक नया शेप एक नया नाम दे दिया गया ज्वाइड। ओके एंड ज्वाइड मींस एन अर्थ लाइक शेप, इसका एक नया शेप ही बन गया है जिसका मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। ओके नेक्स्ट देखिए ये हमारा अर्थ है, ये दिखने में आपको ब्लू कलर का भी दिखता है। ठीक है इसलिए इसका नाम ब्लू प्लैनेट भी रखा गया है। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ठीक है अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, ये एक बहुत ही अनोखा प्लैनेट है। क्यों? अर्थ हैज कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, अर्थ में ऐसे कंडीशंस हैं जो कि लाइफ सपोर्ट के लिए फेवरेबल है। ठीक है जरूरी है। इट इज नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ओके हमारा जो अर्थ है वो ना ही ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडा है, मतलब वो सन के ना ही ज्यादा पास है ना ही ज्यादा दूर है, हम लोग का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही अच्छी जगह पे है और इसलिए हम लोग का जो अर्थ का टेम्परेचर है वो हमारे सस्टेन हमारे लाइफ के लिए बहुत ही गुड है। ठीक है इट हैज वाटर एंड एयर, और यहाँ पे क्या है वाटर भी है और एयर भी है जो कि दोनों हमारे लिविंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, और यहाँ के एयर में क्या है ऑक्सीजन है जो कि बहुत जरूरी है हमारे जीने के लिए। ठीक है बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, और इन सब चीजों के कारण अर्थ क्या है एक यूनिक प्लैनेट है, एक अनोखा प्लैनेट है जहाँ पे कि लाइफ पॉसिबल है। ठीक है द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज पॉसिबल। ओके Next, blue planet. From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. ठीक है अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों ब्लू प्लैनेट कहते हैं? क्योंकि इसे अगर आप दूर से स्पेस से देखेंगे तो ये ब्लू कलर का दिखता है। ये ब्लू कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि इसका 2/3 ठीक है 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से पूरा कवर किया हुआ है। ठीक है इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये दूर से देखने में किस कलर का लगता है ब्लू कलर का लगता है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एरिया किससे कवर है वाटर से कवर है। ठीक है तो इसलिए हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ प्लैनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ प्लैनेट्स जिसके कि कुछ अलग अलग नाम्स भी हैं, जैसे कि वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। ठीक है वीनस को हम लोग अर्थ का ट्विन भी कहते हैं क्योंकि ये शेप और साइज में
अर्थ के जैसा दिखने में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट, मतलब कि ड्वार्फ मतलब होता है बौना, तो बौना प्लैनेट भी कहा जाता है, इसलिए प्लैनेट के उसमें नहीं आता है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स थे। तो हमने आज अर्थ के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज अर्थ एंड व्हाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ एंड व्हाई अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट, व्हाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, दैट ऑल बी स्टडीड इन दिस वीडियो, ओके। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।